Good morning, dear student. Today I will discuss about the numerical on the psychometric process. This is the part of Unit 4 and the subject name is the refrigeration and air conditioning. Semester is 8. This is the outline of the today lecture. Numerical on the air conditioning system, numerical on the summer air conditioning system, numerical on the air conditioning plant. This is the problem number 1. And the air conditioning system, it is designed under the following condition. Outdoor condition is given 30 degrees centigrade DVT, 70%, 75% relative humidity RH. Required indoor condition, that is the 22 degrees centigrade DVT, dry bulb temperature, 70% RH, relative humidity. Amount of free air circulated 3.33 meter cube per second. Coil dew point temperature DPT, that is the 14 degrees centigrade. Required condition, that is achieved first by the cooling and dehumidification and then by the heating. Estimate the capacity of the cooling coil in terms of the refrigeration, capacity of the heating coil in kilowatt, and the amount of the water vapor removed in kg per hour. So in this numerical, the following parameter will be calculated: the capacity of the cooling coil, capacity of the heating coil, and the amount of water vapor removed in kg per hour. So there are the number of parameters in the given in the problem. So DVT and the RH value is given for the outdoor condition. DVT and the RH condition is given for the indoor condition. What is the amount of free air which is circulated in the room? That is also given 3.33 meter cube per second. How much amount of the dew point temperature for the coil? That is the dew point temperature. That is also given 14 degrees centigrade. So condition will be achieved by the cooling and dehumidification process only firstly, and then after heating it is done by achieving the required condition. So this is the solution where it is will be locate all the points. हर एक point को हमें यहाँ पे psychometric chart में locate करना है. So this is the psychometric chart in which all the conditions are given and all the conditions are the represented here. तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपकी आउटडोर कंडीशन थी, that is the 30 degree centigrade DVT and the 75% RH relative humidity, इसको पहले हमने लोकेट कर लिया. तो आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड ये DVT साइकोमेट्रिक चार्ट में दिखेगा. 75% आपकी RH की वैल्यू यहाँ पे नजर आएगी. ये आपकी सो रही आउटडोर कंडीशन. लोकेट पॉइंट D, दिस इज द शोइंग द इंडोर कंडीशन. रिक्वायर्ड कंडीशन जो कि आपको चाहिए है रूम के अंदर की, ये है 22 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ DVT एंड 70% ऑफ द RH. तो यहाँ पे RH की वैल्यू 70% है और DVT कंडीशन आपकी 22 डिग्री सेंटीग्रेड है. लोकेट पॉइंट B जो कि आपकी 14 डिग्री सेंटीग्रेड DPT है. ये आपकी 14 डिग्री सेंटीग्रेड DPT कंडीशन है जो कि कॉइल सरफेस टेम्परेचर कहलाती है. ज्वाइन AB एट D, जो भी आपकी लाइन है यहाँ से A से, जहां पे भी आपने पॉइंट A को मार्क किया था, इसको आप कहां पे ले आएंगे जहां पे आपको 14 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, इससे मिला दीजिए. तो जो भी पॉइंट आपका मार्क होगा वहां से आपको रिक्वायर्ड इंडोर कंडीशन और जो आपकी इंटरमीडिएट कंडीशन है वो लोकेट हो जाएगी जहां पे की हीटिंग हो रही है. तो सबसे पहले हमको कूलिंग कर रहे थे और डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस कर रहे थे. तो कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस यहाँ से शो होगी. आपको एरो इस तरीके से ले आना पड़ेगा कि आपकी कूलिंग हो रही है, साथ ही साथ में डिह्यूमिडिफिकेशन की प्रोसेस हो रही है. तो यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ज्यादा थी और जैसे ही आप इस एरो को इस तरीके से ले आएंगे और DPT में आप इसको अटैच करेंगे तो ये आपको डिह्यूमिडिफिकेशन शो करेगा, साथ ही साथ में कूलिंग की प्रोसेस को शो करेगा. तो C पॉइंट, दिस इज द पॉइंट where the cooling and dehumidification process is showing on this line. तो इस पॉइंट पे आपका C पॉइंट लोकेट कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारा D पॉइंट दिया हुआ है. D पॉइंट दिया हुआ है, D पॉइंट से आप ओरिएंटल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपकी हीटिंग वाली प्रोसेस जो है वो शो होने लगेगी. क्योंकि पहले हमने कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन किया, देन उसके बाद मूव टू द हीटिंग प्रोसेस. तो हीटिंग प्रोसेस हमारी CD को शो कर रही है और जो AC वाली लाइन है वो आपकी कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन को शो कर रही है. तो दिस इज द फ्रॉम चार्ट. चार्ट से हमने सारी वैल्यूज को रीड आउट कर लिया है.
साइकोमेट्रिक चार्ट से। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है, दिस इज द एच ए। पॉइंट ए पे एंथैल्पी कितनी है, पॉइंट बी पे एंथैल्पी कितनी है, पॉइंट डी पे एंथैल्पी कितनी है, पॉइंट सी पे एंथैल्पी क्या है, ये सारी वैल्यू को हम रीड कर लेंगे साइकोमेट्रिक चार्ट से। इसी तरीके से हाउ मच अमाउंट ऑफ द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ए पॉइंट, हाउ मच अमाउंट ऑफ द specific humidity C point and D point, which is the constant value because of the heating, sensible heating is done. What is the amount of VSA? It is also presented in the psychometric chart. तो यहाँ पे जब आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है VSA की, और आपके पास V की वैल्यू पता है 3.33, तो आप मास ऑफ एयर निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ एयर निकल के आ रहा है 3.78 kg per second। तो कैपेसिटी ऑफ द कूलिंग कॉइल कैन बी कैलकुलेट easily by the formula, that is the MA HA minus of SC upon 3.5. This is the standard formula. So enthalpy at a point of A, it is more than comparing to enthalpy at point C. So HA is coming first. So 3.78, this is the mass of air which is calculated in the formula. 83 enthalpy at point A, 48 enthalpy at point C upon 3.5. This is the formula, equal to 37.84 tons of refrigeration। ये आपका निकल के आ रहा है। तो what is the capacity of the heating coil? Heating coil की capacity क्या रहेगी? That is the MA HD minus of HC। ये आपकी हीटिंग कॉइल की कैपेसिटी रहेगी। तो मास ऑफ एयर जो कि 3.78 है वो रहेगा 53 minus of 48। This is the enthalpy difference which is required for the capacity of heating coil। तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 18.92 किलोवाट। Amount of water vapor removed, this is the last point which will be required, that is the formula by MA WA minus of WD or omega A minus of omega D, bracket close 3600। तो mass of air which is known 3.78, omega A the value of 0.0202 minus of omega D 0.0118, ब्रैकेट क्लोज एंड द ब्रैकेट क्लोज करने के बाद 3600 मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव निकल के आ रहा है 114.3 kg per hour। तो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल एंड दिस इज द सेकंड न्यूमेरिकल। अ समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम फॉर हॉट एंड द ह्यूमिड वेदर, डीपीटी आपका 32 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, 70% RS दिया है, consist in passing the atmospheric air over a cooling coil where the air is cooled and the dehumidified. The air leaving the cooling coil that is saturated at the coil temperature, it is then sensibly heated to the required comfort condition of 24 degrees centigrade and the 50% RH by passing it over an electric heater, then delivered to the room. Sketch the flow diagram of the arrangement and represent the process undergone by the air on a स्कल्टन साइकोमेट्रिक चार्ट एंड डिटरमाइन। तो ये सारी जितने भी कंडीशंस हैं इनको साइकोमेट्रिक चार्ट्स में अपने को शो करना है, और उसके बाद आपको जो पैरामीटर निकालने हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आपको पैरामीटर में सबसे पहला टेम्परेचर ऑफ कूलिंग कॉइल निकालना है, दूसरा पैरामीटर द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रिमूव पर केजी ऑफ ड्राई एयर इन द कूलिंग कॉइल, ये निकालना है, तीसरा पैरामीटर कितनी हीट रिमूव हुई पर केजी ऑफ ड्राई एयर इन द कूलिंग कॉइल, ये निकालना है, द हीट एडेड पर केजी ऑफ ड्राई एयर इन द हीटिंग कॉइल कितना है, ये आपको निकालना है। तो फ्रॉम द चार्ट की आपको सारी वैल्यूज एंथैल्पी की मिल जाएंगी जो जो रिक्वायरमेंट है। तो पॉइंट ए पे एंथैल्पी कितनी है ये आपको मिल जाएगी, HA 86 किलो जूल पर केजी ऑफ एयर। बी पॉइंट पे एंथैल्पी कितनी है ये आपको मिल जाएगी 38 किलो जूल पर केजी ऑफ एयर। एंड पॉइंट सी पे एंथैल्पी कितनी है वो आपको मिल जाएगी 48 किलो जूल पर केजी ऑफ एयर। इसी तरह से स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पॉइंट ए पे कितनी है और पॉइंट बी पे कितनी है ये आपको मिल जाएगी। तो सारे पॉइंट आपने लोकेट कर लिए। जो आपकी पहली कंडीशन है उसको हमने ए पॉइंट पे शो कर दिया, जो आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है उसको यहाँ पे लोकेट कर दिया, पॉइंट सी जो कि रिक्वायर्ड इनवर्ड कंडीशन है उसको यहाँ पे शो कर दिया। देन मूव टू द
कि व्हाट इज द एक्चुअल हैपनिंग देयर, कि पहले हमने कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन की प्रोसेस कर दी, देन उसके बाद हीटिंग की प्रोसेस कर दी। जैसा कि पहले नंबर की प्रॉब्लम में किया था वैसे ही यहाँ पे करना है, सिर्फ डिफरेंस ये है यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही हैं, बाकी सारी चीजें एज यूजुअल वैसी ही हैं। तो टेम्परेचर ऑफ कूलिंग कॉइल जो आपको यहाँ पे मिल रहा है वो है TB इज इक्वल टू 13 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपने जब लाइन ड्रॉ करी तो वहां से आपको मिल गया 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रिमूव ओमेगा ए माइनस ऑफ ओमेगा बी कर देंगे तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी कितना मॉइस्चर रिमूव हुआ। तो 0.0108 kg पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ये अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रिमूव हुआ। इसी तरीके से कितनी हीट रिमूव हुई, कितनी हीट ऐड हुई है, ये आप बाई फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो हीट रिमूव के लिए फार्मूला HA माइनस ऑफ HB, ये फार्मूला लगा देंगे। हीट एडेड के लिए फार्मूला SC माइनस ऑफ HB निकाल देंगे। तो इससे आपको हीट रिमूव आ जाएगी 48 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर, और हीट एडेड कितनी हुई वो आ जाएगी 10.5 किलो जूल पर केजी ऑफ ड्राई एयर। तो सारे पॉइंट को आप लोकेट कर लीजिए। जैसे कि आपकी आउटडोर कंडीशन है 32 डिग्री सेंटीग्रेड 70% RH, ये आप इसको लोकेट कर लीजिए। दूसरा जो पॉइंट है इनडोर कंडीशन के लिए, लोकेट पॉइंट 24 डिग्री सेंटीग्रेड DBT 50% RH, इसको लोकेट कर लीजिए। एट सी ड्राई ए हॉरिजॉन्टल लाइन टू कट द सैचुरेशन लाइन एट पॉइंट बी, इसको लोकेट कर लीजिए। ज्वाइन AB पॉइंट कर लीजिए। तो जो AB लाइन रहेगी आपकी कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन को शो करेगी, और जो BC लाइन रहेगी वो हीटिंग को शो करेगी। So this is the problem number 3. It is required to design an air conditioning plant for an office room with the following condition. What is the outdoor condition? 14 degree centigrade DBT, 10 degree centigrade of the WBT. Required condition आपकी है 20 degree centigrade of DBT, 60% of the RH. Amount of air circulated 0.3 meter cube per minute per person. Starting capacity of the office 60 है. The required condition is achieved by first by heating and then by adiabatic humidifying. Determine the following. तो जो कंडीशन अचीव करनी है कंफर्ट कंडीशन, वो पहले हीटिंग के द्वारा, देन उसके बाद एडियाबेटिक ह्यूमिडिफाइंग के द्वारा। तो हमको निकालना क्या क्या है, हीटिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉइल इन किलोवाट एंड द सरफेस टेम्परेचर रिक्वायर्ड if the bypass factor of the coil is 0.4 and the capacity of the humidifier, ये आपको पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं कि हीटिंग कैपेसिटी कॉइल की क्या होगी, सरफेस टेम्परेचर कितना होगा, और बाईपास फैक्टर आपके पास यदि दिया है तो कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमिडिफायर क्या होगा। तो सभी पॉइंट को हम लोकेट कर लेंगे। तो लोकेट करने के लिए आपको रिक्वायर्ड कंडीशंस जो है सारी पता है। जो भी आपकी गिवन कंडीशन है कि आउटडोर कंडीशन आपकी 14 डिग्री सेंटीग्रेड DBT है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड आपका WBT है, या आपकी आउटडोर कंडीशन है। और जो रिक्वायर्ड कंडीशन है इनसाइड की वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपकी DBT है, और 60% जो RH की वैल्यू वो दी आपकी है। तो एट ए ड्रॉ ए ओरिएंटल लाइन, यहाँ पे पॉइंट ए लोकेट आपने कर लिया पहले, और ए पॉइंट से आपने ओरिएंटल लाइन को ड्रॉ किया जो कि आपकी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके रुकती है, जो कि आपकी यहाँ पे रिक्वायर्ड कंडीशन है इनसाइड की। यहाँ पे आपने इसको हीटिंग कर दिया, और फिर उसके बाद ह्यूमिडिफिकेशन की प्रोसेस करनी है। तो ह्यूमिडिफाइंग की प्रोसेस करने के लिए आपने इसको लाइन को एक्सटेंड कर दिया। तो ए बी जो था वो आपका हीटिंग के वो प्रोसेस को शो कर रहा है, और दूसरी जो कंडीशन है एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन, ये BC लाइन शो कर रही है। तो चार्ट से सारी एंथैल्पी की वैल्यू और हर एक पॉइंट पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ए पॉइंट पे 30, बी पॉइंट और सी पॉइंट पे 43 किलो जूल पर केजी ऑफ एयर बिकॉज ऑफ एंथैल्पी, कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन थी। इसके बाद आपकी ओमेगा ए और ओमेगा बी दैट इज द 0.006 किलोग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ओमेगा सी 0.00875 केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है 0.8175 मीटर क्यूब पर केजी, वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाई जो है 0.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, वेट ऑफ एयर सप्लाई जो है यहाँ पे दैट इज मास ऑफ एयर इज इक्वल टू V/VA। इससे आपका
वेट ऑफ जो एयर सप्लाई है केजी पर सेकंड में निकल जाएगा। जब आपके पास ये आ जाएगा वेट ऑफ एयर सप्लाई, तो उससे आप कैपेसिटी ऑफ हीटिंग कॉइल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फार्मूला है मास ऑफ एयर इन द ब्रैकेट ऑफ एच वी माइनस ऑफ एच ए। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी 4.77 किलोवाट निकल के आएगी, और चार्ट से जो वैल्यू निकल के आएगी 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड निकल के आएगी। तो लेट्स कॉइल सरफेस टेम्परेचर दैट इज कंसीडर टीडी। तो बाईपास फैक्टर आपके पास दिया है 0.4, तो उसके हिसाब से आप वैल्यू निकाल सकते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इट कैन बी कंक्लूडेड 34.8 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम द फार्मूला, एंड द फार्मूला बाईपास फैक्टर इज TD माइनस ऑफ TB अपॉन TD माइनस ऑफ TDA। दिस इज द बाईपास फैक्टर फार्मूला। अब यदि कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमिडिफायर निकालनी है, तो दिस इज द फार्मूला मास ऑफ एयर in the bracket of omega c minus of omega b into 3600. This is the formula. The capacity of the humidifier 0.36669 in the bracket of 0.00875 minus of 0.006 into 3600। तो ये आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ह्यूमिडिफायर की 3.63 kg per hour। So this is the today lecture.